السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور شو کے آغاز میں ہی ڈسکس کرتے ہیں اہل محلہ کے کچھ مسائل۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، تسلی رکھو بس۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ چھوڑ دیجئے خبردار، کوئی ضرورت نہیں ہے ہمدردی جتانے کی۔ صاحب آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے اور وہ بیچارے درد سے کرا رہے ہیں۔ بھائی کیا کر رہے ہو؟ خدا کے لیے کچھ خدا کا خوف کھائیے، ایسے مت کیجئے۔ بٹ بیچارہ اتنا شدید زخمی ہو گیا ہے۔ ہوا کیا ہے بتائیں تو صحیح۔ یار کتے نے کاٹ لیا۔ لطیفی بھائی نہ ہوتے تو کتا لے دے گیا تھا۔ کہیں نہیں لے دے جاتا، کتا کون سا ٹرالی لے کے آیا ہوا تھا؟ نہیں پھر بھی کیا لے گیا؟ اس نے گوشت اتارنا تھا اور نکل جانا تھا۔ گوشت تو لے گیا نا، پھر بھی لے دے گیا۔ بھائی کیا بتائیں جنید میاں، یہ جو آوارہ کتے ہیں انہوں نے گلی محلوں میں وہ ادم مچایا ہوا ہے، روزانہ ہی آ جاتی ہے۔ پتہ نہیں ان کو کسی نے بتا دیا ہے کہ بٹ صاحب اس گلی میں رہتے، اور 15 بندے بھی کھڑے ہوں بیچ میں سیدھا بٹ کی طرف ہی آتے ہیں۔ بٹ صاحب نے پتہ نہیں پنڈلی پہ چٹنی لگائی ہوئی ہے۔ آپ کو تو بٹ صاحب پر پھپتی کسنے کا اللہ موقع دے، لیکن یہ بہت سیریس ایشو ہے آوارہ کتوں کا۔ میں خود سیریس ہوں بھائی، باخدا آپ یقین کیجئے کہ اتنا بڑا کتا، میں تو سمجھا کہ بکرا ہے، میں تو خاموش تھا کہ بکرا ہے کوئی۔ وہ تو جب بھونکنا شروع ہوا تو پتا چلا بھائی وہ تو کتا ہے اور اتنا بڑا۔ اور جنید میاں وہ کتا اتنا زیادہ کتا ہے کہ وہ کاٹنے سے پہلے برا بھلا بھی کہتا ہے۔ کہتا ہے کیا مطلب؟ وہ ریگولر کاٹتا ہے؟ ارے بھائی اتنی گالی گلوچ کر کے پھر سال بعد آ جاتا ہے۔ سال بعد یعنی سالانہ بنیادوں پر کاٹتا ہے؟ پچھلے 4 سال ہو گئے ہیں، ہر سال کاٹنے آتا ہے۔ انتقام؟ یہ تو سنا تھا کوئی سانپ کے بارے میں تھا ایسی بات۔ بھائی ہم نے بھی یہی سنا تھا، اب اس کتے کے بارے میں یوں پتا چلا ہے کہ کسی سانپ نے اس کتے کو کاٹا ہوا ہے۔ یہ کتا آگے پھر بٹ صاحب کو کاٹا ہے۔ بٹ صاحب نے تو ایک دو دفعہ یوں بھی کہا ہے کہ بھائی سانپ کو ہی کہو وہی ڈائریکٹ ہو جائے، بیچ میں کتا ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ 14 ٹیکوں کی بھی بچت ہوگی۔ اب 14 نہیں لگتے، اب تو ایک ہی لگوا کے لایا ہوں، اب ٹیکا ہی لگوا کے لایا ہوں۔ بٹ صاحب کو میرا خیال ابھی بھی 14 ہی لگیں گے۔ ایک ہی لگایا ہے، مگر یقین مانیے کہ اتنا کتے کے کاٹنے پہ بٹ صاحب نے چیخو پکار نہیں کی جتنا ٹیکا لگنے پہ کی۔ جی ویسے تو تسی ہر پھٹے تے کہندے بلاواں اپنے بھراواں نوں، ہن بٹ صاحب نوں کتا وڑ گیا تسی اپنے بھراواں نوں فون ہی نہیں کرن دے۔ میرے بھرا کتے دے مسئلے چ نہیں پیندے۔ چھاڑے نہ گلاں نوں مقدس، اے تے ایسا مذاق کردے رہنا انہوں نے۔ تو تھوڑی جی ہلدی، لائٹ جیاں مرچاں تے 2 انڈے۔ بٹ صاحب زخم تے لانے؟ نہیں آملیٹ بنا کے لیا۔ اب بٹ صاحب خدا کا نام لے۔ یعنی بٹ کو کتا کاٹے تو پکنک شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ حیا کرو۔ آپ ٹینشن نہ لیں، میں فروٹ بھجواتا ہوں ابھی۔ او پہلے آپ تے کھا لو۔ یار کتے وڈن دا فروٹ ہوندا بھی کیڑا ہے؟ لوچے، بیر، گنیریاں، پالسے، جامنو، بھٹا، تر۔ بھائی ویسے بھی اگر فروٹ کھلانے چغتائی نے تو اپنے بچے کو کھلائے۔ یہ بھی کھانا ہے تو کنوں بھی نہیں چھیل سکتا۔ یہ بھی ادھر کھڑا تھا چغتائی کا بیٹا جب کتا کاٹنے کے لیے آیا ہے۔ کتا پہلے چغتائی کے بیٹے کے پاس کھڑا ہوا ہے، اس کی ٹانگ پہ کتے نے غور کیا ہے، اس کے بعد اس نے سر مارا ہے کہ بھائی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عجیب سا منظر آپ بیان کر رہے ہیں۔ کتا کاٹنے آیا تھا کہ اتوار بازار سے وہ گوشت لینے آیا تھا؟ بھائی کتا تو ایسا سمجھدار ہو گیا ہوا ہے جو سالانہ بٹ کو کاٹنے آتا ہے، آتے ہی کاٹتا نہیں ہے، پہلے بٹ کی پنڈلی پہ ایسے اپنا پنجہ پھیرتا ہے، جیسے ڈاکٹر انجیکشن لگانے سے پہلے روئی نہیں پھیرتا، پھر کاٹتا ہے وہ۔ نہیں سر، میں نے تو انہیں کہا تھا لطیفی صاحب کو کہ تمام محلے والے پیسے جمع کر کے ایک جنگلہ مین جگہ پہ لگوا دیتے ہیں تاکہ آوارہ کتوں کا داخلہ اندر نہ آ سکے۔ ارے رہنے دے، ہر بات میں تو پیسے جمع کر کے محلے سے، پیسے جمع کر کے محلے سے، کس بات کا تو لینڈ لارڈ بنا ہوا ہے؟ جنید بھی آج آپ کو یوں بھی بتا دیتے ہیں
کہ یہ کتے ہماری گلی میں آتے کیوں ہیں. یہ جو چغتائی میاں ہے ایسا بے حس آدمی, یقین مانیے جنید میاں ہمارا رہائش کا بہت لمبا تجربہ ہو چکا ہے. ہم نے کبھی بھی کہیں کسی قصبے, کسی شہر, کسی محلے میں ایسا بے حس آدمی نہیں دیکھا. اب دیکھیے پورے محلے میں سب سے بڑا گھر تو ان کا ہے, ظاہر ہے ان کے گھر سے سب سے زیادہ کوڑا برآمد ہوتا ہے. وہ سارا کوڑا جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے شاپروں میں ڈال کے سارے گھروں کے آگے رکھوا دیتا ہے, تاکہ جو جمعدار ہے جو لینے آتا ہے کوڑا وہ سارے محلے سے پیسے لے, حالانکہ کوڑا صرف اس کے گھر کا ہوتا ہے. اب سارے محلے میں کوڑا بکھیر دیتا ہے, اس میں جو ہڈیاں, جو آم کی گٹھلیاں اور جو اس طرح کی چیزیں, وہ آوارہ کتے آ جاتے ہیں وہ کھانے کے لیے. اور صرف کتوں کا ہی نہیں یہ بھٹا, ہمارے گھروں میں اکثر لڑائیاں ہوئی ہیں. ایک دفعہ جنید میاں ہم اپنے بزنس ٹور سے گھر واپس پہنچے. بائی دی وے کیا بزنس ہے آپ کا؟ آپ کی بھاوج لہسن چھیلتی ہیں, پھر وہ ہم منڈی میں سپلائی کرتے ہیں. تو ہم جب واپس پہنچے اپنے دروازے پہ تو کیا دیکھتے ہیں کہ باہر اتنا بڑا چھاپر چونسے کی گٹھلیوں کا پڑا ہوا. چونسے کی گٹھلی ذرا لمبی ہوتی ہے. ہم نے کہا بھائی یہ کیا ہوا؟ ہم گھر گھس کے ان سے گھونگھٹ نکالیے, لڑنا شروع ہو گئی. لطیفی صاحب دیکھیں وہ پورا گھونگھٹ نہیں نکالتی ہیں, ادھر سے بھی نکالیے. کیا کر رہی ہیں, اسے پورا پیک کیجیے, ویلڈ ہی کروا دیں. جنید میاں ہم نے کہا کہ یہ کیا بھائی, اکیلے اکیلے ہی چونسے کے مزے لیتی رہی ہے. یہ بیچاری کہنے لگی کہ جان قسم اٹھوا لیجئے ہماری زبان جل جائے اگر ہم نے چونسا کھایا ہو. ہم نے کہا کہ پھر باہر گوٹھلیاں کس چیز کی ہیں. جنید میاں ہم دھاک میں بیٹھ گئے. اچھا لطیفی میاں یہ دھاک میں نہیں بیٹھتے, گھات میں بیٹھتے ہیں, دھاک بٹھاتے ہیں دوسرے کو. ہاں وہی معافی چاہتے ہیں, اہل زبان ہونے کے باوجود غلطی کر گئے. بھائی ہم گھات میں بیٹھ گئے. ہم نے کہا کہ یہ چکر کیا ہے جو اتنا بڑا شاپر پڑا ہوا ہے باہر. ارے جب معلوم پڑا کہ محلے کا چوکیدار یہ چغتائی کی ڈیوٹی دیتا ہے, ہر گھر کے سامنے یہ کوڑے کرکٹ کا شاپر رکھ کے آتا ہے, تو یقین مانو کہ جی تو چاہا کہ مرڈر کر دیں. لطیفی صاحب بات ہو رہی تھی آوارہ کتوں کی. میرا نہیں خیال کہ آوارہ کتے جو ہے وہ چونسا چوستے ہیں. بھائی وہ جو بیچ میں بات چلی تو بتایا آپ کو کہ یہ بدبخت محلے میں کیا کیا کارنامے سر انجام دیتا ہے. بات بتا رہے تھے کہ کوڑے کرکٹ میں ہڈیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں, جو روٹیوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو کتے آوارہ کھانے کے لیے ادھر آ جاتے ہیں. دیکھیے آپ کو ایک بات آج بتا دوں جنید میاں, آپ کہیں گے کہ لطیفی کے ذہن میں یہ کس طرح آ گیا, مگر لطیفی کا ایک تجربہ ہے. آپ جس بھی علاقے میں گندگی دیکھیں گے وہاں ہمیشہ گندے جانور ہوں. جو علاقہ صاف ہوگا وہاں آپ کو ہمیشہ صاف ستھرے جانور پرندے نظر آئیں گے, چہچہاتے ہوئے, دل لبھاتے ہوئے. اور دیکھیے وہ آوارہ کتوں کے ساتھ ہماری تو کوئی لڑائی نہیں ہے جو گلی میں آ جاتی ہے. وہ بھائی یہی کوڑے کرکٹ سے کھانے پینے کی چیزیں ڈھونڈنے کے لیے آ جاتے ہیں, اور یہ بھائی صاحب صرف سارے محلے سے پیسے بٹورنے کے لیے سب کے گھروں کے سامنے کوڑا رکھواتے ہیں. پوچھئے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھئے. بتائیں جی. جنید صاحب ان کے اپنے اپنے گھر کا کوڑا ہوتا ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں لطیفی صاحب. اصل میں جیلس یہ اس وجہ سے ہے کہ میرے گھر میں آموں کی پیٹیاں آتی ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کیوں نہیں تقسیم ہوتی وہ پیٹیاں. اس بات کا یہ اظہار بھی کر چکے ہیں. نہیں ہم بالکل نہیں اس بات میں جیلس. کھاؤ جتنی پیٹیاں آتی ہیں ساری خود ہی کھاؤ, شوگر اسی طرح ہوتی ہے, اور چونسے سے تو سنا جلدی ہوتی ہے. خدا کا نام لیں, کیوں بد دعائیں دے رہے ہیں؟ ہم بد دعا نہیں دے رہے, ہم تو اس نے بات کی ہے تو کر ڈالی, ہم نے بھی پھینک دی بات, اس نے پھینکی ہم نے بھی پھینک دی. بات ہو رہی ہے بٹ صاحب کی. بٹ بیچارے کو اب آوارہ کتا جو کاٹ جاتا ہے, اور پہلے بھی کئی دفعہ کاٹا ہے, اس کا ذمہ دار یہ شخص بیٹھا ہوا ہے. لطیفی صاحب
ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। नहीं भाई नहीं, रहने दीजिए, हम छोटा जानवर खरीदते हैं। उनका मतलब ये है कि उनकी मदद करके उनका दिल जीत लिया आपने। हाँ, हमने समझा शायद जो हमने बड़ी ईद पे जानवर खरीदा था उसका जिक्र कर रहे हैं। ਬੱਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਨੂੰ? ਬੱਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉਂਝ ਹੀ ਦਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਭਾਈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕੀਮਾ ਮੰਗਾ ਤੇ ਨਾਲ 3-4 ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚਾਂ ਮੰਗਵਾ। ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੀਮਾ ਖਾਈਏ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਜਲਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। कीमा वैसे भून ले, मिर्चें लगा के देखें इनके साथ। आपने महसूस किया कि किस लिए ये कुत्ते के आगे बड़े आराम से टांग कर देते हैं? बहुत अच्छी तरह समझ आ गया। सिर्फ इसलिए कि बाद में आओ भगत होगी। अब उस बेचारी का जो घर का बजट है उसमें बट की तो आओ भगत नहीं होती। कभी आओ हो जाती है, भगत रह जाती है, कभी भगत होती है तो आओ रह जाती है। अच्छा, भट्ट साहब की तो आवभगत हो जाती है, उस कुत्ते को किसी ने पूछा भी नहीं होगा बाद में क्या उस पर क्या गुजरी। तो और क्या, भाभी बेचारी फिर अपने भाइयों से पैसे मंगवा के तो बट के शौक पूरे करते हैं। बेचारों के हर साल कुत्ते की वजह से इतने पैसे लग जाते हैं। मेरे होते हुए पैसों की फिक्र ना करो भाभी, ये लो मेरी तरफ से 5,000 रुपए भट्ट साहब को। सब रख ले, कोई ऐसी बात नहीं, भाई हैं आप मेरे। बहन, काले कुत्ते ने काटा है, बट भाई का सदका जरूर दे देना। बहना मुकम्मल काला नहीं था, डब खड़ब्बा था। बात डब खड़ब्बे की तरफ निकल गई, वरना 2,000 हमारा भी खर्च हुआ है। आपका कैसे खर्च हो गया? भाई 1,600 रुपए का तो इंजेक्शन आया है जो बट को लगा है, और 200 रुपया जाने का और 200 रुपया वापिस आने का रक्शे वाले ने हमसे बटोर लिया। नहीं तो आपने जो इंजेक्शन लिया वो किसी सरकारी हॉस्पिटल से ले लेते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में ही गए थे, उन्होंने कहा कि बाजार से लाइए, हमारे यहाँ कोई इंजेक्शन नहीं है। अच्छा, ये भी एक बड़ा मसला है कुत्ते के कांटे का कि पाकिस्तान में कम से कम 90% सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जिनके पास कुत्ते के कांटे का इंजेक्शन अवेलेबल ही नहीं होता। जी हाँ, और इतना महंगा इंजेक्शन। हम जब मेडिकल स्टोर पे गए तो हमने कहा कि वो कुत्ते के कांटे का इंजेक्शन दे दो, कहने लगा भाई 1,600 रुपया दो। 1,600 रुपया। हमने फिर बट की तरफ देखा, फिर हमने सोचा कि 1,600 का इतना महंगा तो नहीं है बट। ऐसा ना कि उनकी अहलिया से पूछ के देखें, उनके सर का ताज है, वो उनको देख के जीती हैं। उनको देख के नहीं जीती, उनसे बच के जीती है। लतीफी साहब 2,000 आपका भी खर्च हुआ, वो ले लीजिए। अभी हम लानत बेचते हैं 2,000 पे, ऐसी भी कोई बात नहीं, सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि इतना इतराओ नहीं, हमारा भी हिस्सा है इस हादसे में। चलो लतीफी साहब, तुसी अपना 2,000 कट लवो। नहीं जरूरत हमें 2,000 की, अगर देना है तो तुड़ा के दो। इंडिया मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर्स हमें चीनी से खामखा मना नहीं करते। 100 ग्राम इतनी सी चीनी में 387 कैलोरीज होती हैं। 387 कैलोरी, 387 कैलोरीज इन 100 ग्राम ऑफ शुगर। ठीक है, स्टेविया में कितनी कैलोरीज होती हैं? भाईजान, जब हम मोटापे का जिक्र करते हैं, हम क्या जिक्र करते हैं, जहां भी मोटापे का जिक्र होता है तो आपको सबसे पहले जो अहले इल्म लोग हैं या जो डॉक्टर हजरात हैं वो ये कहते हैं जी चीनी छोड़ दें। सबसे ज्यादा कहा जाता है। यार ये तो कहते हैं, मगर चीनी छोड़ना कितना मुश्किल काम है, ये भी तो कोई दसे ना उनको। अच्छा, चीनी छोड़ना मुश्किल काम है तो फिर चीनी के मतबादल पे गौर करना चाहिए। बिल्कुल। कौन सी चीज है? मतबादल वो जो मिलती हैं वो टेबलेट्स छोटी छोटी, स्क्रीन जो है, वो अच्छा, कहते हैं नुकसानदेह है। अच्छा नुकसानदेह भी है, और हम गालिबन जो है वो स्क्रीन के जायके से कोई आशना भी ज्यादा नहीं, हमें पसंद भी नहीं, मजा नहीं आता, मजा नहीं आता। तो एक मतबादल मैं पेश कर देता हूं, अगर हमारे व्यूअर्स उस पर गौर करें, तुम भी गौर करो जरा। कि स्टेविया एक चीज है, अच्छा, लाजवाब चीज। अच्छा जी, सर जी, ये स्टेविया ऑस्ट्रेलिया के साथ है। अब बताओ हम कैसे पतले हो, जहाँ पे मसला ये है कि मैं कितनी हिकमत की बात कर रहा हूँ और वो स्टेविया को ऑस्ट्रेलिया के साथ ले जा रहा है। स्टेविया एक पौधे का नाम है, जैसे धनिया और पुदीना होता है ना, घरों में उगाया जा सकता है। स्टेविया ऐसी लाजवाब चीज है हजूरे वाला। डॉक्टर्स हमें चीनी से खामखा मना नहीं करते। 100 ग्राम इतनी सी चीनी में 387 कैलोरीज होती हैं। 387 कैलोरी, 387 कैलोरीज इन 100 ग्राम ऑफ शुगर। ठीक है, स्टेविया में कितनी कैलोरीज होती हैं? कितनी सर? इतनी अगर स्टेविया लगाओ तो कितनी कैलोरीज होती हैं? 0।
यू बिलीव इट, 0 कैलोरीज, जितनी तो वो मर्जी स्टेविया इस्तेमाल करो, 0 मीठा इतना नहीं होता होगा फिर। अच्छा अब मीठा भी सुन लो। अच्छा। मीठा कितना होता है चीनी की निस्बत? कितना? चीनी की निस्बत 200 गुना ज्यादा मीठा है स्टेविया। 200% नहीं, 200% की बात नहीं कर रहा, 200 गुना ज्यादा मीठा है। अगर इतनी चीनी हो और इतना सा स्टेविया आप इस्तेमाल करें तो वो एक बराबर हो जाता है। ईमान से। हाँ जी हजूर वाला। स्टेविया वे किया क्या कसूर मैंने तेरा। क्या करूं गोगा जी? जी हम पढ़े लिखों का तो बात करना मुश्किल हो गया गोगा जी। बहुत अच्छे नाल स्टूडेंट के डर लाया जिन्हों यूनिवर्सिटी वेखो ज्यादा तो ट्रैक्टर ले जाके यूनिवर्सिटी दी ग्राउंड च फेर रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम यकीन करो कि स्टेविया के फायदे देखो जी सर। स्टेविया की काश्त के फायदे देखो, स्टेविया के इस्तेमाल के फायदे देखो, आप हैरान रह जाओगे कि हम ये इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, हम सोए हुए क्यों हैं। मतलब स्टेविया जो है ना, आप घरों में काश्त कर सकते हैं, इंतहाई आसान काश्त, इंतहाई आसान काश्त है। आप गमलों में स्टेविया काश्त कर सकते हो, आप घरों में क्यारियों में स्टेविया काश्त कर सकते हो, आप मट्टी का कोई खोखा लेके उसमें मट्टी भर के स्टेविया काश्त कर सकते हो, और उसके पत्ते लें, आप उबलते हुए पानी में डाल दें, आप पत्ते लें, उसका सफूफ बना लें खुश्क करके, वो बनी बनाई चीनी है और इतनी लाजवाब। अच्छा सिर्फ ये नहीं कि वो 0 कैलोरी है, वो आपकी हड्डियों को और आपकी बिनाई को तवानाई देता। सबसे बड़ी बात ये, अक्सर मुल्कों में टूथपेस्ट में स्टेविया इस्तेमाल हो रहा है। इतने जबरदस्त चीज है ये, मतलब उसके फायदे गिनते जाओ खत्म नहीं होते स्टेविया के। और सबसे बड़ी बात है चीनी के नुकसानात से आप बच जाते हो। यार अच्छा इतना कमाल का ईमान से ये तो स्टेविया ना हुआ ये हो गया। अच्छा जो अमेरिका का FDA इदारा है, ये FDA अप्रूव्ड है, इसमें कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ फायदे ही फायदे हैं। और घरों में भी काश्त कर, अच्छा चलो घरों में भी काश्त एक तरफ रहने दो, जाहिर है कि चीनी की कीमत में इजाफा होता जा रहा है, उसका यानी फायदा कोई काश्तकार को तो हो नहीं रहा। काश्तकार ने तो गन्ना काश्त करना छोड़ दिया है। तुम यकीन करोगे कि 2018 में तकरीबन 13.5 लाख एकड़ अराजी पे गन्ना काश्त हुआ था, जबकि 2019 में ये 12 लाख एकड़ रह गए। 1.5 लाख एकड़ जो है एक साल में कमी वाकई हो गई है, क्योंकि वो पैसे नहीं मिल रहा है। और ये जो शुगर मिल माफिया है, जिससे हम कई दफा इसका जिक्र कर चुके हैं, हम जो है दुनिया में चीनी की पैदावार के हवाले से हम गालिबन मेरा ख्याल हम 65 लाख टन चीनी पैदा करने के साथ 9वें नंबर पे हैं दुनिया में, और 54 लाख टन इस्तेमाल के हवाले से साथ हम 8वें नंबर में हैं दुनिया में। यानी पैदावार में भी हम 9वें नंबर पे हैं और इस्तेमाल में हम 8वें नंबर पे हैं। ठीक है, दुनिया में वर्ल्ड लीडर कौन है गन्ने की पैदावार, चीनी की पैदावार में? ब्राजील नंबर 1 है। ब्राजील जैसे मुल्क ने यह सोच लिया है कि हम इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने अपना कुछ लोड जो है शिफ्ट करना शुरू कर दिया स्टेविया पे। 4 से 5% वो शिफ्ट कर चुके हैं, अगले 2 सालों में वो 10% लोड जो है वो गन्ने से शिफ्ट करके स्टेविया पे ले आएंगे। हम सोए हुए हैं यार, जहां पर इतना पोटेंशियल है कि आप सवात से शुरू हो जाएं और गुजरांवाला, उकाड़ा, पंजाब में आप यानी यहां तक जा सकते हैं आप, जहां पे 20-30 का डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। आप आराम से स्टेविया काश्त कर सकते हैं। काश्तकार के लिए मतलब एजुकेशन की कमी है ना, कि हम आज तक काश्तकार को बता ही नहीं पा रहे कि स्टेविया की काश्त के कितने फायदे हैं। गन्ने की काश्त एक काश्तकार को सालाना 2 से 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट देती है, वो भी अगर वक्त पे उसको पैसे मिल जाए तो 2 से 2.5 लाख रुपए कमाता है गन्ना काश्त करके। अगर वो स्टेविया काश्त करता है तो उसको 5 से 5.5 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है एक एकड़ में, यानी दुगना किससे? गन्ने की काश्त से। बहुत और फायदे मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ये सेहत के लिए अच्छा, प्रॉफिट के लिए अच्छा, यानी बेचने वालों के लिए भी ज्यादा मुल्क की इकोनॉमी किस तरह यानी उसको बूस्ट मिल सकता है कि हम 1 लाख एकड़ पे आराम से स्टेविया काश्त कर सकते हैं। सर जी ये स्टेविया की खीर बन सकती है? हर चीज बन सकती है बाबा। पूरा खोल के पूछया कर, पूछना चाह रही थी स्टेविया दी खीर दी देग बन सकती है। जब खीर में स्टेविया पड़ सकती है तो खीर की देग में क्या स्टेविया ने हाथ जोड़ देने कि नहीं? देग में नहीं पड़ना मैंने। चलो जी आपका मसला तो हल हो। यार तुम क्यों बोलते हो गोगे स्टेविया में? तुम्हारा क्या तल्लक क्या है स्टेविया से?
वो कच्ची आबादी में रहते हो, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। गोगा जी 5000 से ज्यादा दुनिया भर में मसनूआत ऐसी हैं जिनमें स्टेविया इस्तेमाल हो रहा है, जिनमें सॉफ्ट ड्रिंक्स भी शामिल है, डिजर्ट्स, मतलब दुनिया की कौन सी मीठी चीज है। रशिया नल तो रज जाएगा ना। और तुम्हें बड़ी एक अफसोसनाक बात बताऊं, अल्लाह खैर करे। नहीं तुम सुनो यार, कि ये जो दो बड़ी मशरूब साज कंपनीज हैं पाकिस्तान में, उनमें से एक कंपनी ने पाकिस्तानी काश्तकारों को ये ऑफर की थी कि आप अगले 5 साल तक जितना भी स्टेविया पैदा करेंगे हमारे साथ एग्रीमेंट कर लें, हम खरीद लेंगे, हम खरीद लेंगे। अब देखो कि पूरी जो मल्टीनेशनल कंपनी, पूरी दुनिया में एक ट्रेंड है कि वो जाहिर है कि टनों के हिसाब से चीनी खरीदने की बजाय किलोज के हिसाब से स्टेविया खरीद लें। तो वो क्यों नहीं खरीदेंगे? इसकी तो बड़ी अच्छी मांग ही बात इतनी है, ज्यादा बड़ी है। अच्छी बात है। अब नुकसानदेह नहीं है। हाँ अगर जो चीनी के नुकसानात हैं वो अगर इसमें नहीं है तो फिर मौज लैंड दो जहांगीर तरीन खान साहब। पूरी दुनिया में इस वक्त 11 लाख टन स्टेविया जो है वो पैदा हो रही है। सर जी, इसको घर में उगाने के लिए इसका बीज मिलता है या पनीरी मिलेगी? बीज भी मिलता है और पनीरी भी मिलती है और बना बनाया पौधा भी मिलता है। और पनीरी लेके तो तू फिक्र ना करियो, बड्डी होएगी। बीज से पनीरी बनाना और पनीरी से पौधा बनाना जरा मुश्किल काम है, इसलिए लोग बने बनाए पौधे खरीद सकते हैं। आप नर्सरीज पे जाएं तो 40 रुपए का पौधा मिलता है, वो भी इतना महंगा नहीं है। लेकिन अगर आप अयूब ज़रई फार्म पे जाएं और वहां से 10 रुपए का पौधा मिल जाता है। आप घर में 10-20 पौधे लगा लें आराम से। अब बिल्कुल ठीक है, पर जाई को कहो कि चाह उते रख मैं नर्सरी तो स्टेविया ले और भाभी गोगे से फिर कहे, सरताज बाहर से क्यों लेने जा रहे हैं, घर वाला सारा चर गया। नहीं, वैसे ही मान से वेरी सीरियस नोट, जी बहुत ही कमाल चीज है। हाँ अगर जी। वाकई इसको ये इसके इतने सारे फवायद फायदे हैं हैं। और जो चीनी के नुकसानात हैं, जो अल्लाह माफ करे शुगर से बीमारी से ज़ियाबीत से भरा पड़ा है हाँ सारा जी। मुल्क हमारा, इससे बचना चाहिए। और वाकई ये जो इस तरह की चीजें हम प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं ना जी, मैं बड़ी किसी वक्त दुखी तबीयत से ये सोचता हूँ कि ये एक बड़े लेवल के ऊपर हुक्मरान क्यों नहीं इसकी तशहीर कर रहे हैं। हाँ जी। फौरी तौर पे इस पे अमल करना चाहिए और इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इसको प्रमोट करना चाहिए ये जवेरिया को। और जो भी घर में लगाए, स्टेविया लेकिन मैंने ना याद हो गया ना तो फिर रिवाज पै गया। जो भी अपने घर में काश्त करे 1 रुपया फी केजी मेरा कमीशन रखे। नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जो मानसून में रंग होगा वो तो चो ही जाना, इसमें रंग साज की क्या गलती है? पहली बात तो बेटे ये है, तुम्हें मानसून का नाम नहीं तुम क्या करोगे जी सुंडी के मौसम में, या तुम क्या करो जी कीड़े पतंगे के मौसम में, या कमजोरी के मौसम में। नाज़रीन, आज हस्पताल के सलामती कटहरे में खड़ा है घरों में रंगो रोगन करने वाला एक कारीगर। और ना जी ना बहू जी, रंगो रोगन नहीं, पेंट करने वाला, फाइनल टच देने वाला, आपके घर को निखारने वाला और पूरे मोहल्ले में सबसे वखरा नजर आने वाला इस बंदे की वजह से होता है बाबू जी। और ये सारा काम करके किसी खुद में बढ़ जाने वाला। मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ, बुरश तुमने 4 इंच चौड़ा पकड़ा हुआ है, मुंह तुमने ऊपर अपना गोया में 2.25 इंच का लगाया हुआ। यार तुम इसको कभी इस ब्रश से पेंट करते हुए देखो, ये वाइपर की तरह करता है, 2 हाथों से पकड़ के इस ब्रश को करता इस ब्रश को भी है, इस ब्रश को। ओ नहीं बहू जी, जो ऊंची कंध होती है फिर उसको जरा बड़े प्यार से टीप टाप करना पड़ता है, ऐसे रंग रोगन करके तो फिर नजर आती है ना शक्ल। स्टाइल देखो कैसे बना रहा है, सिर्फ 3 उंगलियों से रंग कर रहा है। हालांकि ये वो कारीगर है जो पेंट के डब्बे में ब्रश भिगोता है ना, तो पेंट के वजन से फिर गिर जाता है। हाय हाय हाय, मैंने खुद देखा है जी कई बारी पेंट कर दिया मुंह ते छिटड़ी की है तो मुंह का पता ही नहीं लगता। अच्छा सर, इन लोगों में से ज्यादातर रंग साज नहीं होते, रंगबाज होते हैं। क्यों? जिस टाइम ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਂਪਲ ਲਵਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਲਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਉਤੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। बिल्कुल। भाई इसका सारा कुछ हम पे ना डालो, आपकी कंध जो है वो स्लाब वाली हो सकती है, साथ वाले गुआंढी सर्विस स्टेशन वाले हो सकते हैं, इस वजह से रंग उखड़ जाता है। ऐ गलत बातें ना करो, फ्रॉड करते हो तुम लोग के जी, सूख के उस तरह का हो जाएगा। इस तरह का फ्रॉडिया डॉक्टर है कि इसके वालिद साहब को भी मिला था। इसके वालिद साहब जब ये छोटा सा था ना जी, तो इसे लेके उस डॉक्टर के पास गए, जाके बताया डॉक्टर साहब मेरे बाकी जो 3 बच्चे हैं
वो टोटल तोल के इतने नहीं है जितना ये कल है। वो डॉक्टर ने आगे से कह दिया फिक्र ना करे बड़ा हो के ठीक हो जाए। डॉक्टर ने भी वही कहा था जो ये रंग साज करते हैं सूख के ठीक हो जाएगा। तो देख लो सुख के कितना ठीक होया। वो तिने भरा दे पीछे लुक जाते। अब इसके अबू बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, सर ये सूखेगा कैसे डॉक्टर? और बाबूजी मुझे जाने दे, मैं अस्तर ला के आया हूं, उस पे फाइनल टच देना है मैंने जाके। एक मिनट, सबसे बड़ा इल्जाम तुम लोगों पे ये है कि आप लोग जिसको इनकी जबान में कहते हैं तैयारी लगाना, जी यानी नीचे पहले उसको सरफेस को ये हमवार करते हैं, वो ये उस पर बिल्कुल मेहनत नहीं करते, ऊपर पेंट करने की जल्दी करते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि महीने 2 महीने के बाद उखड़ के हाथ में आ जाता है। बाबूजी मेरे 2 शागिर्द मर चले हैं इसी वजह से, मेहनत कर करके वो पटीने भरते हैं, ग्लू भरते हैं, ये काम हम सबसे पहले करते हैं। नहीं तो मार क्यों चले ने तंदूर च पटीन भरन डे? बाबूजी बेसमेंट में लगे हुए हैं, वहां पे कोई वो उन्होंने एग्जॉस्ट वगैरह नहीं रखाया हुआ। ਉਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। अरे किसी ले बेसमेंट च जाए अगर ते एग्जॉस्ट चलन दिया होवे ना तो उड़ के एग्जॉस्ट च वाई। बाबूजी आप इस तरह करें ना, ये सेंटर वाले दोनों बंदे मुझे दे दे और मुझसे 10,000 रुपया महीना ले जाए। तुमने क्या करना है इनका? मेरे को सैज दियां घोड़ियां कोई नहीं, मैं इन्हां दे मोढियां ते चढ़ा के बंदियां कोलों पेंट करावांगा। ਉਹ ਤੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ? ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। जिड्डा तू भुआन खुशहाल ना, तू लंघदे बंदे दा छापर भी वेना। सर ये इतने जालिम अगर आदमी अपने घर ले जाए यार, ये दीवार रंग करनी है, कितने दिन लगेंगे? एक दिहाड़ी का काम है, दिहाड़ी पे चले जाएं फिर वही काम 7-8 दिन का निकल आता सर। तो भाई जी काम जरा स्लो स्लो करना होता है ना। वो क्यों स्लो स्लो करना होता है? तेरे मोढे च राड पे है। ਬਾਊ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਲਾਓ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਤੇਜ਼ ਔਰ ਵਧੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਆਪ ਉਸਤਾਦ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। हाँ बिल्कुल। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ओ बाबू जी क्यों साडे कारोबार का सत्यानाश करने लग पड़े हैं? बस बड़े ठेकेदार ने कमरे और प्लेस देखनी होती है, फिर लेबर छड़ दे दी कि चलो बेटा फटाफट मुका दे। ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਐਸੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਫੜਦਾ ਜੀ। इसी मुंह से ठेके पकड़ता है, इसी मुंह से मछलियां पकड़ता है। ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਫੜਦੇ ਹੋ ਹੱਲੇ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਦੂਜਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੀਜਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਚੋਰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਫੜਾਂਗੇ। फिर असी भी अगला ठेका ना फड़िए कि पिछला मुकेगा तो फड़ांगे। अच्छा, बड़ी ये कॉमन हरकत देखने में आती है कि जनाब आप लोगों ने पेंट ठीक नहीं किया, इनका एक ही जवाब होता है जी नीचे प्लस्तर ठीक नहीं है। प्लस्तर पेंट करने से पहले तुमने कहा था, उस वक्त नहीं नजर आया था? सर बड़ा बड़ा फ्रॉड है इस काम में, ये बाकायदा वो जो दुकानदार होते हैं ना उनके साथ इनका तय कमीशन होता है। सबसे पहले तो ये आपको खुद लेके जाते हैं उस दुकान पे, या कहते हैं कि फलां दुकान से लेना, दूसरे पासे रंग नहीं ठीक। अगर आप इन पे यकीन करके कहें कि खुद ले आओ या आपको भी लेके जाएं तो रंग उसी का जिक्र करते हैं कि अच्छा है जिसमें टोकन होता है। ये टोकन फिर उसमें से निकाल के तो वापस दुकानदार को दे के उससे पैसे लेते हैं। आपको इस बातों का पता भी नहीं होता। अच्छा, अगर आप टोकन वाला ना लें रंग, ये बकायदा 10 की जगह पे आपको 16 डब्बे लिखाएंगे या 16 लेके आएंगे, उसमें से फिर पैसे निकालते हैं, आपको तंग करते हैं, जाया करते हैं रंग। बड़ा बड़ा इनका अजीब रवैया होता है। वो नहीं बाबूजी, जो मानसून में रंग होगा वो तो चो ही जाना, इसमें रंग साज की क्या गलती है? पहली बात तो बेटे ये है तुम्हें मानसून का नाम नहीं तुम क्या करोगे जी सुंडी के मौसम में, या तुम क्या करो जी कीड़े पतंगे के मौसम में, या कमजोरी के मौसम में। तुम मानसून क्यों कह रहे हो? सर घर बनाते हुए पेंट के काम में सबसे ज्यादा महारत वाले बंदे चाहिए होते हैं, और ये वो कारीगर लगाते हैं जिन्होंने आज तक कभी ब्रश भी नहीं पकड़ा हो। लो बाजी, मैं आज आपको माहर कारीगर की निशानी बता देता हूँ। माहर कारीगर वो होता है जो छत को पेंट करते हुए उसकी आंख में एक छेट भी ना पड़े। और मैं कसमियां कहता हूँ कि मेरे जितने भी कारीगर हैं किसी की आंख में भी आज तक छेट नहीं पड़ी। हाँ जी, क्योंकि इसके कारीगर एनके लगा के काम करते हैं। एक करी ये पेंट कर रहे, मैं अंदर चला गया, आप ये ने एनक लाई, मैं क्या मैं ला के रंग साज गया से इतने जुल्फी बुखारी खलोता। अच्छा जी, मालिक के मकान घर ना हो ना तो रंग के पुराने डब्बे बजा के गाने भी गा रहे थे। इट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूलेदा ढोले दी मर्जी, चिट्टा चोर। बावजूद दफा मैंने रंग का कारीगर लगाया अपने घर में। अच्छा, आपने भी अपने घर पे
बहुत अच्छे। और तुम्हारा क्या ख्याल है, इसने अपने घर में लेप कराया? ਯਾਰ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ। ਸਰ ਜੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕੰਮ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ 20 ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਹੀ ਖਾ ਲੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ भी 20 मिनट ला दे। ये वाकई इल्जाम ठीक है कि अगर आप इनको दिहाड़ी पे लगा देना, फिर ये घर से निकलने का नाम नहीं लेते। इन पर चोरी का पर्चा करवा कर फिर घर से निकलवाना पड़ता है। यार इस तरह की बातें ना किया करो। ये ना वे गोगा घर रंग साज ला के तो बीवी का जेवर आप बेच आवे ते आगे कह दे रंग साज ने चोरी की। ऐसा फ्रॉड है यार इनके कामों में। जिस तरह आप किसी अस्पताल में ऑपरेशन कराने चले जाए ना, तो अक्सर ऐसे होता है कि वहां के नर्सें डॉक्टर आपसे को 3 थैले मंगवा लेते हैं चीजों की, ये ऑपरेशन में इस्तेमाल होनी है। बाद च पता लगता भाई जी इन्हें च कोई शय भी इस्तेमाल नहीं है। इसी तरह जब ये रंग रोगन की चीजें मंगवाते हैं ना, तो इतनी ज्यादा मंगवा लेते हैं कि बंदा समझता है कि मैं शाही किले का ठेका दूं। उस कारीगर ने तो एक बार रंग के सामान में 2 डबल रोटियां भी लिखवा दी। नहीं यार वो तो मैंने इससे पूछा था, कहता था भाई जी कारीगर च गोगा भी सी। कहता भाई जी गोगा पेंट करदा नाल डबल रोटी ਚੱਬਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਿਪਾਹੀ ਮੁਫਤ ਰੰਗ ਕਰਾ ਲਓ। ऑफ वाइट रंग कर लोगे? नाज़रीन यहाँ मिलेंगे एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आज तक जितने भी शेरे गाए गए हैं उनमें सबसे हिट वही है, हाय 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 दे शानदार राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अंबड़ी ते दिल दा सहारा नी वीर मेरा। घोड़ी चढ़िया नी से यो घोड़ी चढ़िया। लो जी, हस्बे माजी में आपको ऐसी रस्म बताने लगा हूँ जो आपको याद आएगा, अब भी कहीं कहीं है, किसी ना किसी जगह पे नजर आता है। अच्छा। कोई 3-4 साल बाद, मगर ये रस्म पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी। जब भी कहीं शादी होती थी तो वहां पे दूल्हा का सेहरा लिखा जाता था और पढ़ा जाता था। कोई ना कोई उसका सेहरा दोस्त, कोई शायर ऐसा होता था लाइमन। हाँ, पहले जैसा कोई ना कोई होता था मोहल्ले में। हाँ जी, लाइमन रिश्तेदारों में या दोस्त अहबाब में या उसके हलके में कोई ना कोई ऐसा शायर होता था थैले जैसा, जिहदा थैला भी ओडा ही हुंदा सी ते उहदा अपना कद भी ओडा ही हुंदा सी। तो वो लिख के ले आता था सेहरा, और वो सेहरा बाकायदा वो शादी वाले दिन जब उसे सेहरा बांध दिया जाता था दूल्हे को, तो वो शायर या दोस्त या भरा या वो कोई भी अगर चाहे तो वो खुद उधर खड़ा होके गाता था। या अक्सर ये होता था कि जो गांव का कोई ऐसा बंदा होता ना, अक्सर दादा जो होता था या जो पिंड का नाई, ये लाजमन वो कोई ना कोई सेहरा पास खड़े होके गाते थे। और इन्होंने कोई सेहरा फिक्स लिखा होता था और उसमें सिर्फ दूल्हे का नाम बदल लेते थे। गौरी की तरफ गए हैं तो बीच में गौरी का नाम ला लिया, गोगे की तरफ गए हैं तो बीच में नहीं, गोगा तो नहीं लगेगा बीच में, गोगे का तो साइड पे ढेर लगाना पड़ेगा। गौरी की दफा भी उन्होंने वही चेहरा पढ़ दिया था, गोरे रंग दे दुपट्टियां दी छां कर। अभी भी जो फिक्स सिर्फ नाम ही जो है ना वही चेंज करते थे, बाकी फिक्स ही होता था। अच्छा, एक और मैया की आपको बात बताता हूँ। आज तक जितने भी शेरे गाए गए हैं उनमें सबसे हिट वही है, हाय 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 दे शानदार राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अंबड़ी ते दिल दा सहारा नी वीर मेरा। घोड़ी चढ़िया नी से यो घोड़ी चढ़िया, पापा राजा मेरे। ये सबसे मशहूर हुआ है। वैसे तो बहुत सारे शेरे गाए भी गए हैं और फिल्मों में भी आए हैं और वो हिट भी हुए हैं, मगर ये जो अंदर ना जी लिखने वाला जो है वो दूल्हा को दुआएं देता था।
अच्छा, इसी तरह दुल्हन के लिए भी लिखा जाता था, उसके लिए रुखसती लिखी जाती थी। उसका कोई दोस्त अहबाब या कोई रिश्तेदार बहन भाई जो है, जो पोएट्री करता है, वो उसकी रुखसती लिखता था और वो भी उसी तरह गाई जाती थी। अभी भी किसी जगह पे कुछ कहीं ना कहीं सुनने को आता है, नजर भी आता है कि वो रुखसती भी उस वक्त ही गाई जाती है जब दुल्हन आके बैठ जाती है तैयार हो के ना, चौखी सुर्खी लाके जो बैठ जाती है, तो उस वक्त फिर वो रुखसती गाते हैं। और इसमें सबसे जो पुरलुत्फ पहलू है ना, शेरे के अंदर जो है ना जी, रिश्तेदारों के नाम भी फिक्स किए जाते थे, फिट किए जाते थे। शायर जितने भी रिश्तेदार करीबी होते थे, बहन भाई ये वो, उनके नाम बीच में फिट करने की कोशिश करता था, और जिसका नाम नहीं था ना फिट होता, वो अक्सर कह भी देता था कि दुर फिट। मेरा तो नाम लतीफ का नाम लिख लिया थे, असी नहीं मामे। अच्छा, नाम फिट करने के चक्कर में वो रदीफ काफिये का बेड़ा गर्क भी होता था, वो कर देते थे, जायज समझा जाता था। हाँ, रिश्तेदारों के साथ साथ दूल्हे का बाप, दूल्हे का चाचा, दूल्हे का दादा। हाँ जी, करीबी तो लिखे ही जाते थे ना। जो मामे चाचे होते थे उनका भी लिखा जाता था। ये को बहुत करीबी दोस्त है, उसका भी पता है, तो उसका भी विच नाम फिट हो जाता था। अच्छा, इसमें जो गांव के जो होते थे ना जी, लोग जो कामकाज करने वाले आके जो शेरा गाते थे, उनको फिर पैसे भी दिए जाते। जब वो शेरा गा रहे होते थे तो जिस तरह वेलें देते हैं ना जी, या सलामियां देते हैं, इस तरह उसको फिर पैसे मिलते थे। और फिर वही शेरा जो गाया जाता था या लिखा जाता था, उसको बाद में वो खत्तात से लिखवा के और फ्रेम करा के तो घर की कंध पे भी लगा दिया जाता। यार, तुमने शादियों में सलामी का जिक्र किया है, तो कल मुझे एक मैसेज बड़ा मजेदार मिला है। उन्होंने कहा नया ट्रेंड ये है कि आप दुल्हे का जूता छुपाने की बजाय उसका मोबाइल छुपाएं, तो 5,000 की बजाय 50,000 रुपए भी देगा दूल्हा। क्या वैसे तो जो था बेचारे दा मोबाइल होवे 3,500 वाला, यार, जो मोबाइल तुसी रख लो, सिम मैनू कट दे। नहीं, जो मोबाइल में उसने अपनी दोस्तों के नंबर रशीद प्लम्बर के नाम से फीड किए वो कीमती होंगे उसके लिए। देखो यारा, यानी कि कोतहाना कहे था तो रशीद प्लम्बर है बेचारा बदलाव हो गया। अब तो अक्सर प्लम्बरों ने अपना नाम रशीद प्लम्बर रख लिया। अच्छा, बड़े सगीर के बहुत बड़े सिंगर नुसरत फतेह अली खान साहब, उन्होंने भी शेरा गाया हुआ। दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, और बहुत पॉपुलर वो भी हुआ। इसका मतलब है कि शेरा जो है इसकी बड़ी अहमियत होती है। अच्छा, एक और है, मत्थे ते चमकन वाले मेरे बनड़े थे। अच्छा, ये गा रहे हैं तो इसमें गोगा नहीं इंटरेस्ट ले? नहीं, गोगा नहीं। क्यों? गोगा ये सोच रहा है कि ये तो शेरा सीधा सीधा मेरे खिलाफ है। विग दे चमकन वाल कहो तो फिर भी। अच्छा, गोगे जैसे बारात की आप बात कर रहे हैं दीदी, तो गोगे जैसे आदमी देखे होंगे आपने बारात पे, कहते ताड़ा चलान होएगा जी, बाद जब रुपया निकलता हो, ऐसे होते हैं, अक्सर ऐसे होते हैं। हाँ जी। बड़े बड़े मये आते होते थे ये अपने बारातों पे और शादियों पे, ये बरूपिये आते थे, शेरा लिख के लाने वाले, शेरा गाने वाले, बड़ा शुगल होता था बकायदा। ये जो भांड हम अब भी आते हैं छोटे शहरों में, इधर उधर नजर आते हैं, मगर वो बड़ी अच्छी, बड़ी मजे की चीजें होती थी। आके उस खुशी के मौके पे उनकी खुशी को ये लोग दुबाला करते थे। एक और शेरा बड़ा मशहूर हुआ है, शेरिया वाले मान जवानिया, शेरिया वाले। हाँ, बड़ी बात है। ये भी मैं याद है, इसलिए नहीं कहता कि इसमें जवानिया का जिक्र है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे-हाल, और आज की अच्छी बात ये कि जिंदगी को जीना है तो आगे देखें, जिंदगी को समझना है तो पीछे देखें, और समझ कर जीना है तो आगे और पीछे दोनों तरफ देखें। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।